Okay, the thing we have to start is the exercises, and I have told you to try do it at your homes, your exercises. So have you tried that? Have you tried to solve the answers of the given exercises? How many of you have done or have tried? Who all have done? Yes, Anish, Aryan, Rajveer, Bhavya. Have you tried doing this exercise? A. Good if you have done. Good. Now it's time to those who have done, they have to just see that what they have done is correct or not. They have to match it. And those who have not done, I'll help him. I will write on the board and you will copy it from there. Okay? Right? Clear? Done? Okay. So now the exercise A, right? That is on your page number 75, right? First is she became dash. So dash will be completed. You what you have to do, you have to write the appropriate word. You have to complete the following sentence with the appropriate word you have to put there, and you have to complete the sentence. Okay. So here we will write a doctor, right? Okay. Second, the carpenter made dash. So what we have to fill in this dash? We have to fill what a carpenter made. Made a dressing table, a dining table, whatever you can write, a chair, okay, anything. Okay. So, okay. Then third, the train arrived. The train arrived. Okay. So what we can write? Where the train arrived? You can write that place, right? So train arrived at Jaipur. So whatever you want to write, you can write. It is not like you can say station. Done. Okay. Then fourth, the earth revolves. Okay. So revolves around the sun. You all know. Just complete it. Right. Fifth one, the gardener watered the gardener watered what he will water? Plants. So all the plants. Right. So just complete this. Write down. Now it is visible to all of you.
Okay, write down. Second one is a dressing table. You can write anything, a dining table, anything. Okay, whatever the carpenter is being get prepared with, right? Write down. देखो Done. Shall we move? Okay. Now, sixth one. The police arrested the thief. Right? Okay. Third is at Jaipur station, at Hyderabad station, whatever you want to write, you can write it. Okay, Anish? Aryan, sorry. You have not done till yet. After 6, 7, the naughty boy broke dash. That is, you can write anything, that is the glass and of window, right? 8, she ate dash. An apple. Okay, simple. Ninth, I met dash. That is, I met my father after 1 year, 2 year, whatever you want to do. Right? 10th one, my elder brother went dash. Anything that is to market, right? Simple and easy. Okay. Seventh is a glass pan of a window. Note it down.
Done. 10th one is to market. Sixth is the thief. Seventh is a glass pan of window. Done. I'm repeating. First one is the thief. Second is the glass pan of window. Third is an apple. Then your ninth one is my father after 1 year. And the last 10th one is to market. Right? Done. Okay, do it fast, all of you. Yes, all other. Rajiv. Done. Devansh. Apurva, Nish. Bhavya. Gurmesh. Kushal. Lipika, Navya. Priyanshi. Sandeep. Done.
Okay. So now in the next exercise, that is B, what you have to do, the thing which we have learned, we have we have discussed in the chapter is given over here. Okay, so while doing this exercise number B, it will be very much be clear with you that whether you have understood what is transitive and intransitive, right? Like, understand the verb in the following sentences and state whether they are transitive or they are intransitive. And what you have to do, you have to mark a tick in the correct box and write the object of the transitive verb of the line. Right now, what you have to do, you have to mention the verb of it, the object in given in that, and you have to mark the transitive and intransitive. Okay, clear to everyone what you have to do? Have you tried this exercise at home? Have you done some of the questions? Try to solve some of the questions of it. Yes. Yes, Lipika, Kushal, who has tried this? Navya, have you done? Manish, you have done? Tried this? Okay. So now we're going to start with that, right? Charger. Right? So the first one given over here is many students are learning Spanish, right? So two blocks are given over there, and in the top of it, it is written transitive and intransitive, right? Blocks are being made over here, right? And at the top, they are mentioned with what it is that we have to state, right? So the first one is the first one is transitive. Okay. So what we will do, we will tick on the transitive. Where the transitive is written, we will tick over there. Here what it is written, intransitive, right? So we will not write anything. We will not make a cross also. We will not write tick. We will not do anything. Just leave it blank. On the transitive, we will tick over here, right? Done this much. Okay. And now what they have given? They have given you a blank space. Okay. So here where the blank space is given, what we have to write? Object. What they are asking here, the object. Right? How it is given in your books, I'm telling you, please see. Don't get confused. Right? And here we will write Spanish. Okay. समझ आया? The first where it is written transitive, you will take over there. You will take over here. Then second where it is written intransitive, you will leave this blank. Okay. And where there it is given a dash over there, an object is written at the top, you will write Spanish over here. Right? Clear to everyone?
Clear? Okay. Right? The second one will also do, and then we'll continue in our next class, right? This is the first one. Second one, the boat sank rapidly, right? So this will be two blocks again given over here. This is the intransitive verb. So when we'll use intransitive, no object is being used. So in the bracket, you will write no object. In the dash, sorry, in the dash part, you will write no object. That's it. Clear? Done first two? Done everyone? Okay. So now in this way, you have to complete all of your other fill in the blanks which is given in this exercise. 10 of them are there. We have done till in 2 we have done, and we'll continue with this and the last exercise C in our next class, right? Okay. Thank you everyone. Good morning, student. Very good morning, Bachcha. How are you? Good morning. Good morning, Priyanshi, Anish, Apurva, Deepika, Devan, Sandeep. आवाज आ रही है बच्चा? ओके, कौन सा लेसन चल रहा है अपने? लेसन नंबर 14. ओके, कंजर्विंग और एनवायरमेंट.
अपना जो पर्यावरण है उसका संरक्षण। ओके, अब क्लियर है? अब क्लियर है बच्चों वीडियो? ओके, यस। देखिए बच्चों, इसमें आज हमें चैप्टर ही पढ़ना है, बोर्ड पे कुछ भी वर्क नहीं है। जो हमने जो डिस्कस किया था, जो चैप्टर हमने रीड किया था, पहले मैं उसे रिकैप कर लेता हूं। ओके, उसके बाद में हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट एवरीथिंग दैट सराउंड अस, जो भी हर चीज जो कि अपने चारों तरफ है। ओके, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, इज कॉल्ड आवर एनवायरमेंट। तो उसे अपन अपना एनवायरमेंट कहते हैं। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आपको पता है, आप साइंस में पढ़ते हैं। ओके, जिसमें ब्रीदिंग प्रोसेस होता है, जो मूवेबल रहती है, मूव करती है। ओके, तो जरूरी नहीं कि जो प्लांट्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो भी लिविंग थिंग्स है। ओके, तो वो कहलाती है लिविंग थिंग्स, जिनका जन्म होता है, बर्थ होता है, एक जो डेफिनेट उसकी लाइफ साइकिल रहती है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है, तो वो कहलाती है लिविंग थिंग्स। एंड नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें ऐसा कोई बर्थ या डेथ का फिक्स लाइफ टाइम नहीं रहता है। ओके, लाइफ पीरियड नहीं रहता है, जो ब्रीदिंग नहीं करती, रिप्रोडक्शन नहीं करती, दैट इज नॉन एज नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जांपल एयर है, सॉइल है, वाटर, प्लांट्स है ना, वाटर है, और अपनी जो चेयर है, कंप्यूटर है, मोबाइल, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स है। जो कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स हैं, इंसेक्ट, ओके, ये सभी लिविंग थिंग्स है। ये हमने कर लिया था। ओके, नेक्स्ट अपना था इसमें पॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक। तो पॉल्यूशन भी क्या है, अनकंटेमिनेटेड पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस जो अपने में, चाहे वो लैंड हो, वाटर हो, ओके, या फिर एयर हो, इसमें जो मिक्स हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम पॉल्यूशन कहते हैं। तो पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशन और ड्राइंग इन द एनवायरमेंट बाय द डिस्चार्ज और हार्मफुल सब्सटेंसेस। ओके, अब ये देखिए, एयर में भी हो सकता है, वाटर में भी, सॉइल, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। अपनी बुक के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के पॉल्यूशन, तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट वो नेक्स्ट क्लासेस में आपके आएंगे। अपने जो इसमें है वो 3 टाइप्स के पॉल्यूशन है। ओके, एयर पॉल्यूशन है कि जब एयर के अंदर कंटेमिनेशन हो जाता है, यानी कि अनवांटेड सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है, डिफरेंट टाइप्स की कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये डिफरेंट टाइप्स की गैसेस है। ओके, ये मिक्स हो जाती हैं और उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, उनका ज्यादा हो जाता है, CO2 इनका ज्यादा हो जाता है, पॉइजनस गैसेस का ज्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। ओके, क्लियर है एयर पोल्यूशन? ओके, हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं कि हम जो फ्यूल्स वगैरह यूज करते हैं, वुड है, कोल है, पेट्रोल है, ओके, तो इनका हम यूज कम करें, बहुत ही जरूरत हो तो हम इनका यूज करें, तो उससे हम एयर पोल्यूशन से बच सकते हैं। ओके, क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि वैश्विक ताप बढ़ता जा रहा है, हीट बढ़ती जा रही है, और उससे अपना जो एनवायरनमेंट है, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो काफी इंक्रीज होता जा रहा है, जो कि अपने लिए क्या है, हार्मफुल है। नेक्स्ट आपके इसमें आता है वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक अपने क्या था बच्चा, वाटर पोल्यूशन। तो सेम डेफिनेशन है, बस उसमें एयर में मिक्स हो जाती है अनवांटेड
पार्टिकल्स और इसमें वाटर में मिक्स हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। वेस्टेज फ्रॉम आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज आर डंप्ड इनटू द रिवर। कि अपने घरों से जो वेस्टेज निकलते हैं या फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से, इनसे जो वेस्टेज निकलते हैं वो जो वाटर बॉडी है उसमें डंप कर दिया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है, जैसे कि रिवर है, लेक है, पॉन्ड्स है, सी है, ओशियंस है। तो इनमें जो वो मिक्स हो जाता है तो वो वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। और इससे क्या इफेक्ट होता है, इससे जो मेराइन लाइफ है, जो वाटर बॉडी के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, ओके, उनके लिए भी हार्मफुल है। इसके अलावा जो वाटर बॉडी में जो प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं उनके लिए भी ये काफी हार्मफुल होता है। इसके अलावा अपना जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है, और उससे बहुत सारी डिजीजेस जो है वो अपने हो जाती है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ये मैं रिकॉल कर रहा हूँ, रिकैप कर रहा हूँ इसको, ओके, रिपीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट अपने क्या था इसमें, लैंड पोल्यूशन। ये भी मैं एक बार और बता देता हूँ। जब वेस्टेज आर आल्सो ऑफन थ्रोन और ब्यूरिड इन लैंड कॉजिंग लैंड पोल्यूशन, की जब वेस्टेज है तो इस तरह के जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है वो हम जमीन में ब्यूरिड कर देते हैं, दबा देते हैं, ओके। या फिर फार्मर्स है तो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स से बने हुए जो फर्टिलाइजर्स हैं वो एक्सेस यूज करते हैं, तो उससे अपनी लैंड पॉल्यूट हो जाती है, ओके। तो इससे क्या हो जाती है, जो फर्टिलिटी है अपनी लैंड की वो भी कम हो जाती है, और ज्यादा जब करते हैं तो वो मिट्टी लास्ट में वेरन हो जाती है, बंजर हो जाती है, ओके। उसमें जो यूजफुल जो इंसेक्ट्स है जैसे अर्थवॉर्म वगैरह है वो भी जो है खेतों में से क्या हो जाते हैं, इन पेस्टिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से खत्म हो, उससे अपनी जो लैंड होती है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, ओके। तो हमको ये जो भी पॉल्यूशन है इनको रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए, जो हमने पढ़ लिया किस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने इसमें क्या था, वेस्ट जनरेशन एंड डिस्पोजल, ओके। अब देखिए वेस्ट क्या है, एनी मटेरियल्स, हर एक ऐसा पदार्थ या मटेरियल्स दैट इज नो लॉन्गर यूज्ड, जिसे हम लंबे समय से यूज नहीं कर रहे या वो अपने काम नहीं आएगा, टू अस इज कॉल्ड वेस्ट। तो वो चीज कहलाती है वेस्ट, कि ऐसी चीजें जो न तो हम अब यूज करेंगे न पहले से कभी यूज कर रहे हैं, तो वो चीजें क्या होगी अपने लिए, वेस्ट होगी, ओके। बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, बट अकॉर्डिंग टू अपने जो चैप्टर में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग देखिए, वेजिटेबल पील्स हैं, हम सब्जियां वगैरह लाते हैं और उनको छीलते हैं तो बहुत सारा कचरा एक्स्ट्रा उसमें बच जाता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वेस्ट, ओके। इसी तरह अपने न्यूज़पेपर है, ओल्ड न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, ओके। तो अब हम उनको यूज नहीं करेंगे, ओके, अब अपने वो यूजेबल नहीं है, तो वो भी अपने लिए क्या होगी, वेस्ट होगी। और भी बहुत सारे घर में चीजें रहती है, बोटल्स वगैरह हो जाती है, कैंस वगैरह हो जाती है, कोई टूटा फूटा सामान होता है, ओके। तो ये चीज जो कि अब हम यूज नहीं करेंगे तो वो सभी चीजें कहलाती हैं वेस्ट। अब देखिए क्या होता है, ये जो वेस्ट होती है तो इसको हम बाहर फेंक देते हैं, जला देते हैं, तो प्रॉपर उसका डिस्पोजल नहीं करते, उससे डिफरेंट टाइप्स के जो पोल्यूशन है वो फैल जाते हैं। हम प्लास्टिक वगैरह है वो जला देते हैं, ओके, प्लास्टिक जलाते हैं, पॉलीथीन जला देते हैं, तो इससे अपना जो एयर पोल्यूशन भी होता है और अपना लैंड पोल्यूशन भी होता है, ओके। तो एयर पोल्यूशन तो कैसे होगा कि उसमें जो जो हार्मफुल गैसेस निकलती है ये अपने एनवायरनमेंट में काफी लॉन्ग टाइम तक रहती है, और उससे अपने ऑक्सीजन लेवल एनवायरनमेंट में कम हो जाता है, तो इससे एयर पोल्यूशन होता है। इसके अलावा अगर हमने उसको मिट्टी में दबा दिया, ओके, तो ये हंड्रेड्स थाउजेंड ईयर्स तक ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती, ओके। तो उससे क्या होता है, अपनी लैंड पोल्यूट हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया इनको नष्ट नहीं कर पाते, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। अगर हम इसको पानी में फेंक देते हैं तो आगे वो क्या कर देती है, चॉक कर देती है, जो वाटर बॉडी है तो उसके जाने का जो रास्ता है उसको वो चॉक कर देती है, तो वो प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो प्रॉपर एक इनका जो डिस्पोजल है वो प्रॉपर मेथड से होना चाहिए। यहां तक बच्चों क्लियर है आपको? अभी जो मैंने आपको समझाया है इसमें अगर कुछ पूछना है तो बताइए, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उदय, राजवीर, प्रियांशी, नव्या, लिपिका, कुशाल, गुरमेश, देवांश, भव्य, अपूर्वा,
कुछ पूछना है अभी तक जो मैंने रिपीट किया इसमें? ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो बच्चों कल परसों मैंने आपके वो क्वेश्चन आंसर सेंड किए थे, वो चैप्टर 12 के थे आई थिंक, तो उसमें मैंने लेसन 5 लिख लिया, तो आप एक बार मैच कर लिया करो, जो अपना रनिंग में लेसन चल रहा है या तो उसी के आंसर या जस्ट उससे पहले होंगे। ओके, वो बाय मिस्टेक लेसन 5 लिख दिया मैंने उसमें, बट वो लेसन 12 था, तो आप उसको चेक कर, ऐसे नहीं कि लेसन 5, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लेसन अपना 12 चल रहा है या 13 चल रहा है, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था। ओके, तो एक बार मैच कर लिया करो। कुछ बच्चे चैप्टर 5 में उसको ढूंढते रहेंगे। ओके, वो इतना माइंड यूज नहीं करेंगे कि चैप्टर अपना जो चल रहा है हो सकता है बाय चैप्टर नंबर हो गया हो सेंड, तो आप मैच कर लिया करो। ओके, यस, देखिए इसमें वेस्ट ये हो गया काइंड्स ऑफ वेस्टेज, ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, वापस बता देता हूँ। जो वेस्टेज है ये 2 टाइप्स के माने जाते हैं। ओके, तो ये जो वेस्टेज है कितने टाइप्स के माने जाते हैं? 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज एंड सेकंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। अब देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कौन से होते हैं? ऐसे वेस्टेज जो कि या तो हमें प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं, और ये क्या होते हैं आफ्टर सम टाइम, ये कुछ टाइम बाद में क्या हो जाते हैं, इनको जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अपनी सॉइल में ये मिक्स हो जाता है कंप्लीट। तो इस तरह के जो वेस्टेज हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल। देखो, दिस इज वेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स animals such as vegetables and fruit peels, meat, bones, flowers, leaves and paper. Biodegradable waste. Okay, rots and finally mix with the soil. ये गल जाते हैं और धीरे धीरे ये छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और लास्ट में जो अपनी सॉइल रहती है इसके अंदर क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं, वेस्टेज है, उसे हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। नेक्स्ट होता है अपने नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल इसके बिल्कुल क्या है? ऑपोजिट है। ऐसे सब्सटेंस जो कि न तो रोटिंग होते हैं, न रोट होते हैं, न तो गलते हैं, न डीके होते हैं। ओके, और अपने जो एनवायरनमेंट में है या सैंड में है, सॉइल में है, वो काफी लॉन्ग टाइम तक, उसमें 100 ईयर्स भी आ सकते हैं तो 1000 ईयर्स भी आ सकते हैं। ओके, इतने टाइम तक अपने एनवायरनमेंट में वैसे ही पड़े रहते हैं और इससे अपना एनवायरनमेंट है ज्यादा पोल्यूट होता है। तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं उससे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सेंटेंस कहते हैं। देखिए जैसे कि प्लास्टिक है। ओके, एक प्लास्टिक की कैन है, वो हमने कहीं जमीन में डाल दी। ओके, और उसको उसको गड्ढा खोद के उसको मिट्टी में दबा दिया, और आप अपने घर का जो कचरा रहता है जो भी फ्रूट्स वगैरह से निकला हुआ है, ओके, उसका कचरा है एक बैग, आपने एक अखबार में उसको लपेटा, ओके, बहुत सारा हो गया, और उसको भी मिट्टी में दबा दिया। अब आप 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ उसे देखेंगे तो जो वेजिटेबल्स पील्स हैं, जो सब्जियों वगैरह के जो वेस्टेज है या जो हमने पेपर दबाया, वो 2-3 मंथ आफ्टर क्या होगा? वो वहां नहीं मिलेगा, वो मेन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, मिक्स हो जाता है सॉइल के अंदर। जबकि आप उस कैन वाली जगह देखेंगे तो उसको कैन को निकालेंगे तो 2-3 मंथ भी वहीं पर मिलेगी, आफ्टर 1 ईयर आप देखोगे तो भी वहीं मिलेगी। ओके, 5 ईयर्स आफ्टर देखोगे तो भी, वो कई साल बाद देखोगे तो भी वो जो प्लास्टिक की कैन है बड़ी वाली, वो उस जगह वैसे ही मिलेगी। मीन्स क्या है? वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाई। ओके, तो इस तरह के जो भी हैं, इसके अलावा जो ग्लासेज हैं, कांच हैं, प्लास्टिक रैपर से जो हम टॉफीज वगैरह खाते हैं या चिप्स वगैरह लेते हैं, तो उनके जो रैपर्स होते हैं, तो ये सभी क्या है? ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते और इन्हें हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। ओके, क्लियर है बच्चों? यहाँ तक आ गया आपको समझ में? जो डिस्ट्रॉय हो गए वो बायोडिग्रेडेबल, जो नहीं हो पाते उसे हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल।
आगे बात तो समझ में? लिपिका आप बताएंगे एक रोप है, एक रस्सी है प्लास्टिक की बनी हुई। ओनली लिपिका मुझे आंसर देगी। एक प्लास्टिक की रस्सी बनी हुई है, ओके, जो अपन घरों में इनमें काफी टाइम यूज करते हैं, सिंथेटिक फाइबर की बनी हुई है। वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल? वो किसका एग्जाम्पल है? ओनली लिपिका की में आंसर। यस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक प्लास्टिक की रस्सी बनी हुई है जो हम घरों में इनमें यूज करते हैं, ओके, मैनमेड है वो। तो वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है? कुशाल का आंसर मैंने चेक नहीं किया, मुझे लग रहा है इसका रॉन्ग भी हो सकता है। मैंने मना किया था कुछ, फिर भी कुशाल ने आंसर सेंड किया। लिपिका, आपको आंसर नहीं आ रहा? बायोडिग्रेडेबल, वेरी गुड। लिपिका का आंसर बिल्कुल राइट नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग है। इतना बताने के बाद भी बायोडिग्रेडेबल कैसे होगी वो? बिकॉज वो तो सिंथेटिक है, मैनमेड है, प्लास्टिक आ गया उसमें, प्लास्टिक की बनी हुई है, ओके, तो वो कहलाएगी बायोडिग्रेडेबल नहीं कहलाएगी, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाएगी, ओके। कुशाल का आंसर राइट था, बट मैंने जानबूझ के कहा था कि उनका आंसर रॉन्ग। तो आप अच्छी तरह समझिए उसको ध्यान से कि प्लास्टिक की बनी हुई है, ग्लास की यानी कांच की बनी हुई है, ऐसी चीजें होगी नॉन बायोडिग्रेडेबल, ओके। लिपिका कह रही है आपने क्या पता, बाकी सभी स्टूडेंट्स को पता है, उन्होंने आंसर भी सेंड कर दिया। कल भी मैंने बताया था, आई थिंक उससे पहले मैंने एक बार बताया था, और आज भी बात बताया कि प्लास्टिक है, कांच की जो बोटल्स वगैरह है, बुक में भी लिखा है, वो सभी होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ओके। अब देखिए मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अपने कॉटन क्लॉथ है, ओके, कॉटन क्लॉथ है, ओके, मान लीजिए टी शर्ट है, कॉटन से बनी हुई है, तो वो कौन सा होगा? नव्या मल्होत्रा, लिपिका अगर, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिए। नव्या मल्होत्रा, नव्या मल्होत्रा की मैं आंसर, कॉटन क्लॉथ है अपनी, ओके, वो वेस्ट हो गई, अब वो क्या होगी, बायोडिग्रेडेबल होगी या नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाएगी वो चीज? नव्या मल्होत्रा की मैं आंसर, यस, बायोडिग्रेडेबल कहलाएगी, बिकॉज वो किससे बनी हुई है, वो कॉटन से बनी हुई है, ओके। तो कॉटन क्या है, एक नेचुरल फाइबर है, और ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये हो गई बायोडिग्रेडेबल, ओके। क्लियर है बच्चा? अब देखिए नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, रिड्यूसिंग वेस्ट, यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपके देखिए क्या है, टू कंजर्व द एनवायरनमेंट, के एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, उसको बचाने के लिए हमें 4 पॉलिसीज यूज करनी, वी शुड फॉलो द पॉलिसी ऑफ 4R। अब देखिए 4R से कहीं 3R से भी लिखा आता है 2R, तो जैसा हो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं अपने इसमें 4R, इसमें 4R, ओके, इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप इसको ऐसे रीड मत करना 4 रुपीज, ओके, कहीं आप सोचें कि ये क्या लिखा हुआ 4 रुपीज, सर ने 4 रुपीज लिख दिया, 4 रुपीज नहीं है, 4 आवर्स बोलते हैं इसको, ओके, 4 आवर्स। अब 4 आवर्स का मतलब क्या है, 4 टाइम्स क्या है, आर लिखा हुआ,
जैसे एक बार आर लिखा तो इसका मतलब तो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया रिफ्यूज। ओके, एक आर का मतलब क्या हो गया, सेकंड जो आर लिखा हुआ है दैट मीन इज, इसका मतलब क्या हो गया, रीयूज। ओके, नेक्स्ट है थर्ड नंबर का आर, इट्स मीन इज रीयूज। एंड फोर्थ आर मीन्स रिसाइकिल। ओके, ये देखो आर। क्लियर है बच्चों? तो हमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए ये जो 4 आर्स है, इसका जो फॉर्मूला है वो हमें माइंड में रखना चाहिए। ओके, अब देखिए इनका यूज क्या है, इसमें क्या है ये 4 आर्स। ये क्वेश्चन भी आता है, हर क्लास में आता है, ये 10th में भी आएगा आपके। ओके, किसी न किसी रूप में। तो अभी आप इसको समझ लो, वहां डायरेक्ट वर्ड ही आएगा, follow 4 hours to conserve our environment, but 4 hours का मतलब हमें आना चाहिए। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, इनकी सीक्वेंस आगे पीछे कैसे भी हो सकती है। ओके, अब देखते हैं हम इसको। अब देखिए रिफ्यूज, ये जो फर्स्ट है रिफ्यूज, इसका मतलब क्या होगा, refuse things that add to garbage. For example, when you go shopping, take your own cloth bag and refuse the plastic bag given by the shopkeeper. अब रिफ्यूज यानी आप उसको मना कर सकते हैं। अपने आप घर से आप अपना बैग लेकर गए, कॉटन बैग लेकर गए, ओके, और शॉप पर गए, कौन कह रहा है ये टाइम इज ओवर? राजवीर, आपको जल्दी है टाइम की? अभी देखिए टाइम क्या हो रहा है। तो आप उसको प्लास्टिक बैग के लिए मना कर सकते हैं कि हमें प्लास्टिक बैग यूज नहीं करना, तो आपने नो प्लास्टिक बैग यूज, तो उसको आपने मना कर दिया, और आपने आपके पास में जो कॉटन बैग था, आप जो घर से लेकर गए हैं उसी में सामान लेकर आ गए। तो इस तरह से आप किसी चीज उसके लिए उसको मना कर रहे हैं तो वो होगा रिफ्यूज। रिफ्यूज मीन्स उसको मना कर दिया। ओके, रिफ्यूज थिंग्स दैट ऐड टू गार्बेज, कैसी चीजें चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या है, कैसी चीजें जो कि कचरा फैलाती है, गार्बेज फैलाती है। ओके, तो उसके लिए मना कर देना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू गो शॉपिंग टेक योर ऑन क्लॉथ, आप जाते हैं शॉपिंग करने, तो अपना क्लॉथ बैग लेकर जाइए और उसको शॉपकीपर को प्लास्टिक बैग के लिए मना कर दीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट अपना आता है रिड्यूस। ओके, रिफ्यूज के बाद में है रिड्यूस। अब देखिए रिड्यूस मीन्स क्या है, रिड्यूस द यूज ऑफ थिंग दैट क्रिएट गार्बेज। We often buy more than we need and end up throwing out some of it. कि हम जरूरत से ज्यादा हम कोई चीज परचेज कर लेते हैं, ओके, और बाद में जब वेस्ट होता है, यूज नहीं होता, फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है, गार्बेज बढ़ जाता है। जितनी जरूरत हो उतना ही हमें सामान लेना चाहिए। जैसे हमने वेजिटेबल्स ले ली, मंडी लगी और हम बहुत सारी वेजिटेबल्स 2-3 बैग भर कर लिया है। ओके, अब 1-2 दिन हमने यूज किया और कुछ उसमें जो वेजिटेबल्स थी वो क्या हो गई, खराब हो गई, डिके हो गई, वेस्ट हो गई। ओके, और हमने उसको बाहर फेंक दिया, तो उससे क्या हो गया, कचरा हो गया। तो जितनी जरूरत है हमें उतनी ही चीजें लें और हम उसको यूज करें, और जितनी जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा हमें उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज उससे क्या होता है, गार्बेज ज्यादा होता है। We often buy more than we need and end up throwing out some of it. For example, if we buy too many vegetables, some of them rot and have to be thrown. तो उसमें कुछ खराब हो जाएगी, ओके, और हम उसको फेंक देंगे। तो उससे क्या हुआ, अपनी मनी भी गई, ओके, और साथ में उससे जो बाहर है वो गंदगी फैल गई, कचरा फैल गया, thereby increasing garbage. If you buy only as much as you need, you will reduce garbage. तो हमें उतनी खरीदनी है कि ठीक है, हमने 1-2 दिन उसे काम में लेना है, फिर बाद में और परचेज कर लेना है। ओके, तो उससे हम जो एक्स्ट्रा जो गार्बेज होता है उससे हम बच सकते हैं, एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। नेक्स्ट होता है रीयूज, यानी कि कोई चीज को हम दोबारा यूज करना। ओके, ये रीयूज।
अब देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक की कैन आपने ले ली या प्लास्टिक बोतल आपने ले ली, ओके, बिकॉज हमको जरूरत भी पड़ती है, फ्रिज वगैरह में रखते हैं या और भी कई बार हम सामान में रखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने उसको एक बार यूज कर लिया और उसको बाहर फेंक दिया, ओके, ऐसा नहीं, हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं रीयूज। अब देखिए जैसे कि इंस्टेड ऑफ थ्रोविंग अवे प्लास्टिक बोटल्स दे कैन बी यूज टू स्टोर वाटर, ओके, प्लास्टिक बोतल है तो उसको फेंकने से तो अच्छा अपन उसमें पानी भर के रख सकते हैं। एम्प्टी जैम और पिकल्स बोतल, जैम आता है या अचार की जो बोतल्स आती हैं तो हमने यूज कर ली, उसमें वो चीज खत्म हो गई, तो उसके बाद में उसको फेंकने से तो अच्छा है हम उसको कोई उसमें दूसरा उसको यूज कर लें, उसमें कोई दूसरी घर में चीज है वो उसके अंदर डाल दें, ओके। कैन बी यूज टू स्टोर थिंग्स इन द किचन, प्लास्टिक बैग्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, आपने प्लास्टिक बैग ले लिया, पॉलीथीन या घर ले लिया आपने, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप बाजार जा रहे हैं तो अपने कॉटन बैग के साथ में वो भी ले जा सकते हैं, तो कुछ ऐसे सामान जो कि एक साथ नहीं रख सकते वो उस प्लास्टिक बैग में पॉलीथीन में ला सकते हैं, या घर में भी कोई ऐसी चीज है जो कम यूज होती है तो आप उसमें रख सकते हैं, उसको बाहर फेंकने से तो अच्छा है कि हम घर में उसको किसी अदर यूज में ले लें। थर्स वेस्ट कैन बी रिड्यूस, उससे अपन क्या हो सकते हैं जो वेस्टेज होता है तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय रीयूजिंग, इसकी वजह से रीयूज दोबारा से हम उसको यूज करते हैं, थिंग्स इंस्टेड ऑफ थ्रोविंग देम अवे, तो उसको फेंकने से तो अच्छा है हम उसको दोबारा किसी काम में यूज करें, ओके। नेक्स्ट आता है आपके रिसाइकिल वगैरह और फिर गार्बेज वेस्टेज, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज टाइम इज ओवर, अपना टाइम ओवर हो रहा है, आपको भी थोड़ी जल्दी रहती है, रजवीर को ज्यादा रहती है, ओके। इसमें जो भी आज जो हमने डिस्कस किया जो बताया इसमें से एनीथिंग जो आपको पूछनी है वो पूछिए, ओके। 1 मिनट है आपके पास में। एनी प्रॉब्लम? राजवीर, नव्या, लिपिका, कुशाल, भव्य? नो प्रॉब्लम, ठीक है, बाय, हैव ए नाइस डे।